Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will start with chapter 1 Fundamentals of Business, Business Studies Class 11. So let's start with the first part of this chapter, that is activities. What are the kind of activities? Economic and non-economic. Economic activities are those which are related with money. Economic activities are undertaken with the motive of earning profit, and non-economic are those activities which are undertaken for psychological satisfaction. Like if you are dealing in any kind of business, profession, or employment, you are employed to an employer, then your motive is earning profit, so it is an economic activity. And when you are simply going to temple, or you are running an NGO, or for non-profit organizations, okay, only those organizations, and or distributing goods to needy people, that all gives you psychological satisfaction. So this is psychological satisfaction. Now there are three kinds of economic activities. First is employment, second is business, third is profession. The all these three are very different from one another, but similar in one point, that is the main motive is earning income. Okay, business runs for earning profit, employment for simply wages or salary, profession for some due fees. Okay, so the result of these profession, fees, here profit, and here wages or salaries. Kinds of non-economic activities include any kind of non-economical activities include social service, charity, and religious activity, which I have explained to you. Now let us come to features of business activities. Features of business activities are six, total in six. That includes, first of all, it is a economic activity. Okay. Then production or procurement. Production या procurement. सो बेसिकली प्रोडक्शन मीन्स आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी कि मैन्युफैक्चर कर रहे हो, और प्रोक्योरमेंट मतलब आप कोई चीज़ लेके बेच रहे हो. फिर डीलिंग इन गुड्स ऑन रेगुलर बेसिस, तो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो ही चुका होगा. डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, इसमें जो इस पॉइंट का मेन मैटर है वो इस पॉइंट में है, रेगुलर बेसिस. आपने कोई चीज़ सेल कर दी, ठीक है. लाइक मेरे घर में ना मशीन रखी थी, वो पुरानी हो चुकी थी, मैंने उसे बेच दी, तो इट इज़ नॉट अ बिजनेस. हाँ, आपको उससे प्रॉफिट हुआ, वो बेकार पड़ी थी, आपने उसे बेच दिया, तो आपके पास पैसे आए, आपको उससे प्रॉफिट हुआ, बट दैट डजंट मीन कि इट इज़ अ बिजनेस एक्टिविटी, क्योंकि आप उस काम को डेली नहीं कर रहे. देन द थर्ड पॉइंट इज़ फोर्थ पॉइंट इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मीन्स अगर आप कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, तो इट इज़ द बेसिक नीड कि आप किसी चीज़ का आदान प्रदान करोगे. ओके, लाइक गुड्स हैं, तो आप गुड्स सेल करोगे, तो यू मस्ट डिलीवर इट टू योर कस्टमर. और इफ़ यू आर परचेजिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चर, देन द गुड्स विल बी डिलीवर्ड बाय मैन्युफैक्चर टू योर एंटिटी premises. Okay, so sale or exchange of GNS short form of goods and services. Then main motive is earning profit. As I have told you that business is an economic activity, and economic activities are those which are undertaken with the main motive of earning profit. So this is also a point of business activities. Then uncertainty of risk. अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क को हम दो नाम देते हैं. एक ही है अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट. अनसर्टेनिटी मतलब कि कोई चीज़ जो सर्टेन नहीं है कि वो होगी. हम जब भी अपना कोई बिजनेस एंटिटी खोलते हैं, तो हमारा मेन मोटिव अर्निंग प्रॉफिट तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम लॉसेस के लिए पहले से ये बैकअप लेके चलते हैं. हम
किसी आने वाले प्रॉफिट को के लिए तैयार नहीं रहते, बट किसी रिस्क के लिए तैयार रहते हैं। और रिस्क के भी बहुत से टाइप होते हैं, अभी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट मेन एलिमेंट है फीचर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ का। Now, objectives of business. There are three objectives of business, three categories of objectives of business, that are economic, social, and human. So, let us start with economic activity. Economic objectives of business. So, these include SPG, profit, growth, and survival. ओके देखो, सर्वाइवल का मतलब कि किसी भी बिज़नेस के लिए प्रॉफिट अर्निंग करना बहुत नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि वो तभी एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा जब उसे एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उसे मिल पा रहा हो, तभी वो उसे री इन्वेस्ट करके कुछ ना कुछ ग्रो कर पाएगा। ओके, अगर उसे नई ब्रांच खोलनी है तब भी उसे मोर इनकम की ज़रूरत होगी। उसे सर्वाइव करना है कहीं नए प्लेस पर, तब भी उसे प्रॉफिट की ज़रूरत होगी। तो ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के 3 पार्ट हैं। नाउ सोशल ऑब्जेक्टिव्स टोटल 5 होते हैं, जिनमें आते हैं आपकी कम्युनिटी सर्विस, फिर आ जाते हैं आपका अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से क्या आपको पता चलता है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब कि आप अडल्टरिंग, लाइक एडवर्टीज़मेंट में पक्का होना, लाइक आप एडवर्टीज़मेंट में एग्जैगरेशन कर रहे हो किसी चीज़ को, अपने प्रोडक्ट को हाइपरबलाइज कर रहे हो जैसे कि वो रियलिटी में नहीं है, बट आप उसे ऐसे बता रहे हो कि वो इतना कुछ कर देगा, तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। अब कम्युनिटी सर्विस में एक्सप्लेन करना रह गया। कम्युनिटी सर्विस का मतलब क्या है? कि आप किसी अपने जो आपका जो इलाका है, आपके बिजनेस प्रोमाइसेस जहाँ है उसके इलाके में डेवलपमेंट करना। आप वहाँ पर नीडी पीपल को कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, डोनेशन कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, या किसी बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो। इट इज़ अ काइंड ऑफ कम्युनिटी सर्विस। और जब आप ये सब करते हो तो आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। फिर आपका एक ऑब्जेक्टिव है कि आप मार्केट में क्वालिटी प्रोडक्ट लाओ। कोई भी नया वेंचर आप आजकल देखते हो, कोई भी नया बिजनेस खुलता है तो इट कम्स विद अ न्यू इनोवेशन। ओके, वहाँ पर कोई नई क्वालिटी लाई जाती है, तो वो ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव है। फिर अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन, आपका बिजनेस रन हो रहा है लेकिन उससे ऐसी कोई मतलब पॉल्यूशन होता है, बट आप इंडस्ट्रियल एरिया में जगह लो, वहाँ पर काम करो। तो आपका एक बेसिक मोटिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सोशल लाइफ की तरफ, कि आपके जो आसपास के लोग हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो, तो ना वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन ना हो, तो वो सब चीज़ें सोशल ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड होती हैं। नाउ कम टू ह्यूमन ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड है? वहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, लेबर है, उसके लिए गुड वर्किंग कंडीशन हो, मतलब कोई ग्रिम मेजरी प्लेस ना हो, पर्सनल ट्रेनिंग हो, फिर पर्सनल ग्रोथ। लेबर भी चाहती है कि उसे अपने मतलब एम्प्लॉयज़ हैं तो उनमें भी एक अपनापन बनता है, वो बात करेंगे, सारा टाइम काम करते रहेंगे तो उनकी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं। तो उनकी पर्सनल ग्रोथ हो, वहाँ पे अच्छे वर्किंग कंडीशन हो। फिर स्पेशल बेनिफिट्स लाइक मेडिकल केयर। ठीक है, आप एम्प्लॉय कर रहे हो किसी को, तो आप उसे इंश्योरेंस प्रोवाइड करो। ठीक है, वो सब स्पेशल बेनिफिट्स में आते हैं। बोनस दो टाइम टू टाइम। ठीक है, कोई भी वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, एक्स्ट्रा वर्क के लिए उसे पे करो। ओके, देन पीयर रिकॉग्निशन, वही पॉइंट है कि लोगों में अपनी एक आपस में पहचान बनाने का टाइम दो। ट्रेनिंग टाइमली ट्रेनिंग होनी चाहिए उनकी। अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हो और उन्हें कुछ आता नहीं, तो वो कैसे उस चीज़ को एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पाएंगे? तो उन्हें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। आपको उन्हें टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए एडवांसमेंट के तौर से।
नाउ लेट्स कम टू रोल ऑफ प्रॉफिट. रोल ऑफ प्रॉफिट इन एनी बिजनेस एक्टिविटी वो क्या क्या है? सर्वाइवल, एक्सपेंशन, ग्रोथ, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू. देन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, कोई बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है वो उसके प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी से पता चलता है. लाइक आप कोई भी profit indicate whether a business is being managed efficiently or not. The success of business can be judged by its ability to earn profit. Higher profit means higher efficiency of management. तो जितने लोग उसमें काम कर रहे हैं उससे भी एक इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस पता चल रही है कि भाई इतने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, इतने एम्प्लॉयज़ हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो पैसा आ रहा है, यानी कि बिज़नेस में प्रॉफिट अर्न हो रहा है. तो ये एक इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस की तरह भी काम करता है. इससे हमें इंडेक्स मीन्स एक बेसिक स्ट्रक्चर पता चलता है कि उसे कितना ग्रो कर रहा है बिज़नेस एक. ठीक है, फिर जो हम रिस्क बियर करते हैं एक बिजनेसमैन की लाइफ में ना, रिस्क होता ही होता है. बिजनेस मतलब रिस्क, प्रॉफिट हो ना हो रिस्क ज़रूर हो सकता है. तो रिस्क बियरिंग के लिए रिवार्ड है प्रॉफिट. देन गुडविल, जब आप एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट